class 4th. Welcome to your English class, बच्चे. This is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. So children, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3rd, Alias of your roots and wings. Alright, chapter number 3rd, Alias. Fine. Before starting the chapter, let us do some exercise that is given here. A short exercise is given here. Okay children, can you tell me, there are 3 persons here. Okay, these 3 persons are visible to you all. Are they happy or sad? ये क्या दिख रहे हैं आपको? हैप्पी दिख रहे हैं या सैड दिख रहे हैं? खुश है या दुखी है? Yes, they are happy because they are smiling and they are laughing also, na? That's why they are happy. So see, in the first one it is asking, do you think the people shown in the pictures are happy? Then your answer will be yes, they are happy. Okay, then you will write yes. In the second one it is asking, what makes you happy? यहाँ पूछ रहा है आपसे कि आपको कैसी चीज़ें, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको हैप्पी करती है, आपको खुश करती है. देन योर आंसर विल बी व्हेन आई हेल्प अ पुअर पर्सन, person, then it makes me happy. जब मैं किसी गरीब इंसान को या किसी बेचारे इंसान को जिसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प करता हूँ या करती हूँ, देन ये मुझे हैप्पी कर देता है. ठीक है, ऐसी हैबिट. अगर हाँ, हो सकता है ये सबकी डिफरेंट हो सकती है. ओके, ये तो मैंने अपना ओपिनियन रख दिया, आपके यहाँ चेंज भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. ओके, आपको जो चाहे आप वो लिख सकते हो. फाइन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. अगर आपको लिखना है देन जस्ट पाउज द वीडियो पाउज कर लिया करो एंड देन जस्ट राइट इट. ओके, या फिर आप इससे बैक कर सकते हो, बैक करके फिर से देख सकते हो अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो. इन द थर्ड वन इट इज़ आस्किंग, व्हाट मेक्स योर पेरेंट्स हैप्पी? आपके पेरेंट्स को ऐसी कौन सी आपकी आदत है जो वो उनको हैप्पी कर देती है, उनको खुश कर देती है. देन योर आंसर विल बी व्हेन आई ओबे एल्डर्स. जब मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको ओबे करता हूँ, देन इट मेक्स my parents happy. Then it makes my parents happy. ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरी आवाज़ सुनकर क्लियर कर लिख लो आप. ठीक है, ऑल राइट. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी. मैच द मेल एनिमल्स विद द फीमेल एनिमल्स. So children, in the column A, male animals are given, okay, and in the column number B, female animals are given. All right, and you have to match them. Fine. Then see, come to the first one, horse. Then what is the feminine gender of horse? That is mare, na? Yes. Then first one will be matched with the option number D. See, it is already matched. You can do it from here. Got it? Okay. Second, sheep. It will be matched with the option number E. Third one is deer. Then it will be matched with the option number A. Fourth, fox will be matched with the option number B. Fifth, bull. It will be matched with the option number C. Alright? Okay. The story. See, at first let me tell you who has written this story. Then this story has been written by a Russian author. Okay, and whose name was Leo Tolstoy. Leo Tolstoy was a Russian author and he was world's greatest novelist. He wrote many novels also. That's why he was known as the world's greatest novelist. He was born in a well-known aristocratic family. His parents died when he was young, so he and his siblings were brought up by relatives. When he was child, then their parents were died. Okay, so he was taken care by relatives. Okay, he and his siblings were taken care by relatives. All right. See, this is the picture of Leo Tolstoy. Here it is given. All right. Yeah. उनके जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनके देखभाल करने वाले कौन थे? उनके रिलेटिव्स थे. ही वॉज मेनली टाउट एट होम बाई ट्यूटर्स बट वेंट टू कजान यूनिवर्सिटी टू स्टडी लॉ. पहले तो उनको क्या किया जाता था, पहले वो घर में ही ट्यूशन पढ़ते थे एंड देन आफ्टर उन्हें कहाँ भेजा गया था? यूनिवर्सिटी, एंड दैट वाज द कजान यूनिवर्सिटी. ओके, एंड फॉर व्हाट? टू स्टडी लॉ. ओके. Tolstoy left the university in the middle of his studies. He worked in the army for some time and later took up writing. Then what happened?
ही जस्ट लेफ्ट हिज स्टडीज इन द मिडल, उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी, एंड देन ही वर्क फॉर द आर्मी एंड ही ज्वाइन द आर्मी. ओके, एंड देन after that he started writing novels, stories, okay, and all, and so on. Some of his remarkable creations are War and Peace. उनकी जो जो स्टोरीज़ वगैरह जो जो नॉवेल्स लिखी गई उनमें से कुछ कुछ जो फेमस है उनमें से दो का नाम यहाँ दे रखा है, दैट इज़ वॉर एंड पीस एंड एना कैरेनिना. ओके, एना कैरेनिना. ऑल राइट. ओके, now moving to the story, let us read a short story by Leo Tolstoy about a man called Elias. Children, in this story there is a person whose name is Elias. There is a man whose name is Elias. Okay, and this story is about that person. Now moving to the first paragraph of this story. There once lived a man called Elias in Ufa. Here, that person lived in where? Ufa. Ufa is the name of a place, okay, and it is located in रशिया. ऑल राइट, ये जो उफा है एक जगह का नाम है और ये कहाँ है? इट इज़ इन रशिया. फाइन, इट इज़ अ सिटी इन रशिया. ऑल राइट. ओके, Elias' father died after 1 year of Elias' marriage. He did not leave him much property. Elias then had only 7 mares, 2 cows, and about a score of sheep. He was a good manager and soon began to acquire more. What happened in this story? That when Elias got married, then his father was died. After 1 year, his father was died. Okay, जब एलियास की शादी होती है तो उसके 1 साल बाद कौन डेथ कर जाता है? इसके फादर, एलियास के फादर. ओके, एंड हिज फादर डिडंट लीव सो मच प्रॉपर्टी. और जो उसके फादर ने ना उसके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी नहीं छोड़ा था, कुछ ही छोड़ा था, जिनमें से क्या क्या थे? एलियास देन हैड ओनली 7 मेयर्स. उनमें से 7 मेयर्स थी, मतलब फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, दैट इज मेयर, घोड़ी, घोड़ा का घोड़ी, and then 2 cows and about a score of sheep. And he was a good manager and soon began to acquire more. और उनमें से जो भी प्रॉपर्टीज थी वो क्या कहते? 7 मेयर्स उसके लिए छोड़ रखा था, 2 cows and then 20 sheep. All right. But Elias was very much hard working. That's why he began to acquire more. उसने क्या किया? अपनी हार्डवर्क के कारण और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को अर्न किया, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपने बना लिया. ऑल राइट. और कैसे बनाया? अकेला नहीं बनाया उसने, अकेला सारी एफर्ट्स नहीं लगाया, उसकी वाइफ ने भी उसकी हेल्प की थी. ओके, देन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ही एंड हिज वाइफ वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, राइजिंग अर्लियर दैन अदर्स एंड गोइंग लेट टू बेड. His possessions increased year by year. Elias gradually acquired great wealth. At the end of 35 years, he had 200 horses, 150 heads of cattle, and 1200 sheep. उसके बाद क्या हुआ? जो एलियास और उसकी वाइफ ने क्या किया? दिन रात काम करना शुरू किया. देन दे स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. ओके, दे यूज टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन दे यूज टू स्लीप लेट एट नाइट. वो सबसे लेट सोते थे और सबसे पहले उठते थे ये लोग. ओके, एंड इन दिस वे दे अर्न सो मच प्रॉपर्टीज़. इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए एंड देन दे बिकम वेरी मच रिच. और आफ्टर 35 ईयर्स व्हाट हैपेंड? जब 35 ईयर्स एंड होने को था, देन व्हाट हाउ मच दे वर हैविंग? Then they were having 200 horses, 150 heads of cattle, and 1200 sheep. These were his effort, these were his hard work. ये सारे इसके हार्ड वर्क थे. उसने इतना अर्न कर लिया. कहाँ? 7 mares, 2 cows थे ना. अब देखो, और बस 20 sheep थे. अब उन्होंने कितने ही सारे कर लिया. All right. Okay. Now, so they hired men, okay, फॉर हेल्पिंग हिम एंड वेमेन टू वर्क फॉर हिम. और उन्होंने क्या किया? कुछ आदमियों और कुछ औरतों को अपने कामों के लिए रखा. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. दे टेंडेड हिज फ्लॉक्स, हर्ड्स, मिल्क्ड हिज मेयर्स एंड काउज एंड मेड क्यूमीज, बटर एंड चीज. एलियास हैड एन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द डिस्ट्रिक्ट एनवेड हिम. क्या हुआ कि जो इन्होंने ये और इसकी जो वाइफ है एलियास की, लोगों ने जो मेन एंड वेमेन को हायर किया था, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उनकी जो भी एनिमल्स थे उनका टेक केयर किया, उनका देखभाल किया. फिर उनसे और जो वो दूध निकालते थे उनसे उन लोगों ने क्या किया? बटर बनाया, चीज़ बनाया एंड वन काइंड ऑफ ड्रिंक जिसका नाम है क्यूमीज़. ओके, एक इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रिंक जिसका नाम है क्यूमीज़. उन लोगों ने इससे ये प्रिपेयर किया. Elias had an abundance of everything and everyone in the district envied him.
Influential people heard of him and wanted to be acquainted with him. फिर क्या होता है कि जब ये इतना रिच हो जाता है तो लोग उसके बारे में जानने लगते हैं, उसके बारे में जब सुनते हैं ना तो लोग उनसे क्या करते हैं, मिलने आते हैं। बहुत सारे लोगों को तो उससे जेलसी फील होने लगी। उन लोगों को लगा कि जो इसके पास है काश हमारे पास भी इतना होता। दे यूज टू फील जेलस। Influential people heard of him and wanted to be acquainted with him. People from distant places visited him. He welcomed everyone and gave them food. और फिर क्या लोग बहुत सारे लोग क्या करते थे, दूर दूर से मिलने उससे आते थे। उसके बारे में जैसे जैसे लोगों ने सुना वो उससे मिलने आते थे। ओके। और जो ये एलियास था वो सभी का वेलकम करता था और उनके लिए कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम करता था। दे ही यूज टू गिव देम फूड आल्सो। ऑल राइट, ओके। Now move to the next paragraph. Elias had 3 children, 2 sons and a daughter. He married them all off. When he was poor, his sons had worked with him. They looked after the flocks and herds themselves. और एलियास के कितने बच्चे थे? He was having 3 children, 2 sons and a daughter. 2 बेटा and एक बेटी। ओके। और इसने तीनों की शादी कर दी थी, मतलब सबकी शादी कर दी थी। ओके। व्हेन ही वॉज पुअर, जब वो पैसा नहीं था उसके पास, एलियास के पास, व्हेन ही वॉज पुअर, जब वो गरीब था, तो जो उसके बच्चे थे ना, जो उसके बेटे थे, उन लोगों ने उसकी हेल्प की थी इन प्रॉपर्टीज़ को बनाने में। मतलब कि वो लोग भी उसके फ्लॉक्स को देखभाल करते थे, जो भी एनिमल्स थे उसको देखभाल करते थे। सारी मेहनत उन लोगों ने भी की थी। जिस तरह से एलियास की वाइफ ने उसकी हेल्प की, वैसे उसके बच्चों ने भी उसकी हेल्प की थी। ओके। बट देखो क्या हो जाता है फिर, कहानी में कुछ ट्विस्ट आती है। एंड व्हाट इज़ दैट, इसके लिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। बट व्हेन एलियास ग्रू रिच दे गॉट स्पॉइल्ड। द एल्डेस्ट वॉज किल्ड इन अ ब्राउल एंड द यंगर वन स्टॉप्ड ओबेइंग हिज फादर। लेकिन जब जैसे ये रिच हो जाता है एलियास, तो क्या होता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, सब कुछ स्पॉइल्ड होता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है, जो उसका बड़ा बेटा था ना, ही वॉज किल्ड इन अ वॉर। ब्राउल मीन्स वॉर, ठीक है। एक वॉर मीन्स फाइट, एक फाइट में वो मारा जाता है। एंड द यंगर वन स्टॉप ओबेइंग हिज फादर, और जो छोटा वाला है वो क्या करता है, अपने फादर से दूर हो जाता है। वो उनकी बातें मानना बंद कर देता है। वो उनसे मतलब कि उनसे बहस करना शुरू कर दिया। उसने अपने फादर से ही फाइट कर लिया। सो दे लिव्ड सेपरेटली। एलियास गेव हिज सन अ हाउस एंड सम ऑफ द कैटल, दिस डिमिनिश्ड हिज वेल्थ। और फिर क्या होता है कि एलियास और उसका जो बेटा है वो लोग अलग अलग रहने लगते हैं। ओके। बट आपको पता है ना, पेरेंट्स को आप जितना भी इरिटेट कर दो, दुखी कर दो, बट वो हमेशा आपकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। इसी तरह एलियास भी एक फादर है, और उसने क्या किया, अपने बेटा को, जो बेटा उससे दूर रह रहा था, उसे एक घर दे दिया और कुछ एनिमल्स दिया उसने, ताकि वो अपनी अर्निंग्स ला सके और उससे फूड ले सके, खा सके, कुछ खा सके। ओके। अब अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप उसमें से किसी को कुछ दे दोगे तो ऑब्वियसली है ना कि वो घट जाएंगे, वो कम जाएंगे। तो इस तरह से जो एलियास की प्रॉपर्टीज़ थी, जो वेल्थ थी, वो भी डिमिनिश हो गई, मतलब कि डिक्रीज कर गई, कम गई। ओके। ओके, सी हेयर द पिक्चर ऑफ एलियास इज गिवन एंड हिज एनिमल्स आर आल्सो देयर। काउज है, देखो अब हॉर्सेज है, ये सारे एनिमल्स है ना। और ये देखो इसका घर कितना सुंदर सा है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगा है ना, कितना प्यारा सा, कितना क्यूट सा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताना। मुझे तो बहुत प्यारा लगा इसका घर, बड़ा सुंदर सा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Soon, many of his sheep died due to disease. This was followed by a bad harvest, and then the Kyrgyz stole his best herd of horses. His wealth decreased, and he had to sell off his carpets, furs, saddles, tents, and the remaining cattle. His son, who had parted, went to a far off country, and his daughter was dead. देखो अब क्या होता है, अब इसकी जो डेस्टिनी की जो व्हील है ना, वो क्या होती है, पलट जाती है, मतलब घूम जाती है। अब क्या होती है, जैसे जिस तरह से इतना अमीर था ना, उसे वो गरीब होता जाता है। अब कैसे देखो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। बहुत सारी जो शिप थी क्या करते हैं, वो मर जाते हैं एक डिजीज़ के कारण से। और ये डिजीज़ कैसे होती है, जो भी क्रॉप्स वगैरह हुए उसके जो बैड हार्वेस्टिंग हुई, इसके कारण से वो डिजीज़ फैलती है, और वो जो भी इनके शिप थे वो मारे जाते हैं, वो मर जाते हैं। ओके। और फिर इसके बाद बहुत सारे जो हॉर्सेस थे, जो अच्छे वाले हॉर्सेस थे, अच्छे क्वालिटी के, मतलब कि जो हॉर्सेस से ज़्यादा ही इसकी अर्निंग होती थी, वो सारे हॉर्सेस के जो हर्ड थे वो ग्रुप को चोरी कर लिया किसी ने। और वो कौन थे, किर्गिज़ थे। किर्गिज़ वॉज मंगोलियन रेस, ठीक है। ये लोग कौन से किस ये से बिलोंग करते थे, मंगोलियन से बिलोंग करते थे।
इस तरह से अगर आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है उससे कुछ ले लिया जाए तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ करेगी ना, वो घट जाएगी ना। इसी तरह से इसकी भी प्रॉपर्टी घट गई थी। फिर इससे क्या करना पड़ा, एंड देन ही स्टार्टेड सेलिंग ऑल हिज हाउस होल्ड थिंग्स, जो भी घर की सामानें थे वो सब बेचना शुरू कर दिया। उसने अपनी सामानें बेचना शुरू कर दिया। पैसे की जब कमी होने लगी तो उसने कारपेट्स बेच दिया, फर, सैंडल्स, टेंट्स, और जो भी एनिमल्स बच गए उसे भी उसने बेच दिया पैसे के लिए। और जो उसका बेटा था ना, जो उससे दूर रहने लगा था, वो कहाँ चला गया, ही वेंट टू अनदर कंट्री, वो दूसरे कंट्री में जाकर रहने लगा। और उसकी जो एक बेटी थी, शी वॉज डाइड, और वो मर गई। सोचो कितनी इसकी बैड डेस्टिनी चल रही है, नहीं। ही एंड हिज वाइफ शेम शिमागी हैड ग्रोन ओल्ड, देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर देम। और वो और उसकी जो वाइफ शेम शिमागी, यहाँ उसकी वाइफ का नेम को रिवील किया गया है, देखो। हिज वाइफ नेम वॉज शेम शिमागी। ओके, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली है कि अब इतने सालों के बाद ये बूढ़े होंगे ही। और जब इनको किसी की ज़रूरत है कि देखभाल की, देन देवर नो वन, उनके पास कोई नहीं था टू लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल करने के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर नाइबर मोहम्मद शाह लिव्ड comfortably and was a good man. He had pity on Elias and remembered the, और इसके घर के बगल में ही एक मोहम्मद शाह नाम का एक इंसान रहता था, एक पर्सन रहता था। ही वॉज हिज नाइबर, एंड देन वेन ही सॉ ऑल दिस कंडीशंस, देन ही हैड पिटी ऑन एलियास, उससे उस पर दया आया। ओके, और उसने सब कुछ उसके बारे में याद किया कि कैसा था एलियास, कितना दूसरे को हेल्प करता था, इसके पास कितने कुछ थे कि दूसरों की हेल्प करता था। ओके, देन ही जस्ट रिमेंबर्ड ऑल दोज थिंग्स, एंड देन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. What he remembered? He remembered the hospitality of Elias and said, "Come and live with me, Elias, you and your old woman." फिर उसने क्या कहा एलियास को कि तुम मेरे साथ रहो, तुम और अपनी वाइफ को लेकर मेरे साथ रहो और मेरे पास रहो, और जो भी मेरे यहाँ का काम है वो तुम करोगे, उससे मेरी हेल्प हो जाएगी, और जो अर्निंग्स होगी उससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। क्या करना है, इन समर यू कैन वर्क इन माई मेलन गार्डन एज मच एज योर स्ट्रेंथ अलाउज, एंड इन विंटर फीड माई कैटल। क्या करना है कि जब समर का टाइम होगा, तब आपको पता है ना समर में मेलन मिलता है, वाटर मेलन, तो उस वक्त उसकी गार्डनिंग भी ज़्यादा होती है। देन इन समर यू विल वर्क इन माई मेलन गार्डन, एंड इन विंटर, जब विंटर आता है तो ये चीज़ तो ख़त्म हो जाती है ना, वाटर मेलन नहीं मिलते तो उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है। देन इन विंटर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फीड माई कैटल, तुम्हें मेरे एनिमल्स को फीड करना, मतलब यू हैव टू लुक आफ्टर देम। ओके, एंड वेन यू नीड एनी थिंग टेल मी एंड यू शैल हैव इट, एंड इफ़ यू नीड एनी थिंग देन जस्ट आस्क फ्रॉम मी फ्रीली। ओके, जब मुझसे फ्री होकर आप मांग सकते हो, तुम मांग सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए होगा। Elias thanked his neighbor. He and his wife began to work as laborers and did all the work sincerely. They found it hard in the beginning but got used to the work. They were not lazy at all. उसके बाद जो एलियास है उसने अपने नाइबर को थैंक कहा, एंड देन वो और उसकी वाइफ है उसने क्या किया, उन लोगों ने अपने बड़ा सिंसियरली, ऐसे भी वो लोग हार्ड वर्किंग थे, उन लोगों ने अपने काम को सिंसियरली करना शुरू कर दिया। एंड देन द स्टार्टिंग दे वर फीलिंग वेरी मच हार्ड, डिफिकल्ट, बट दे गॉट यूज टू इट, इट मीन्स दे बिकेम हैबिचुएटेड ऑफ दैट वर्क। स्टार्टिंग में उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट फिर उनको आदत हो गई। एंड दे वर नॉट लेजी एट ऑल, जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया गया, दे वर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर नॉट लेजी ना। या now coming to the next paragraph. One day Muhammad Shah's relatives came to visit him from far. After preparing and offering them food, Elias finished the work. एक दिन क्या होता, what happened one day that there was a guest of Muhammad Shah. They came, okay, his relatives came to his house. Okay, and then what happened, then Elias and his wife prepared food, and then they served them, and then Elias finished all the work. And then what happened, coming to the next paragraph, Muhammad Shah told one of his guests about Elias, and he said that he was aware of Elias and his fame. फिर मोहम्मद शाह ने अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया इलियास से और उसकी वाइफ से। फिर देखो गेस्ट ने क्या कहा, आप देख सकते हो। फिर उसने क्या बताया उसके बारे में, जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया इलियास को। फिर उसके गेस्ट ने कहा कि मैं तो इनके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ। ओके, देन मोहम्मद शाह टोल्ड हिज गेस्ट दैट द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वर्कड फॉर हिम। द गेस्ट वॉज शॉक्ड एंड सेड, फॉर्चून टर्न्स लाइक ए व्हील। फिर उन्होंने, जब मोहम्मद शाह जो है उसने अपने गेस्ट को बताया कि ये जो ओल्ड मैन है, जो इलियास है, ये और उसकी वाइफ अब हमारे यहाँ काम करते हैं।
तो जो गेस्ट थे ना, दे वर शॉक्ड, दैट गेस्ट वॉज शॉक्ड कि अरे ऐसे कैसे हो गया, जिस इंसान के बारे में हमने इतना सुना है, इसके वेल्थ के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके हार्डवर्क के बारे में, आज ऐसा कैसे हो गया अचानक से। किसी को भी शॉक्ड होगा, है ना। ये अरे भाई, पहले हमने इसके बारे में इतना कुछ सुना, अरे अचानक से इतना गरीब कैसे हो गया कि ये किसी और के यहाँ काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ओह गॉड। देन व्हाट दे सेड, व्हाट ही सेड, दैट गेस्ट सेड, फॉर्चून टर्न्स लाइक ए व्हील। जो किस्मत, जो डेस्टिनी हमारी होती है, जो लक हमारी होती है, वो कैसे घूमती है, लाइक अ व्हील, जैसे व्हील घूमती है ना चक्र, तो इस तरह हमारे जो डेस्टिनी है वो भी घूमती है। वन मैन इट लिफ्ट्स, अनदर इट सेट्स डाउन। जो फॉर्च्यून है, जो डेस्टिनी है हमारी, वो क्या करती है, किसी को ऊपर उठा देती है ना। इट मेक्स समवन वेरी मच फेमस, इट मेक्स समवन वेरी मच वेल्दी, और किसी को क्या कर सकती है, इट सेट्स डाउन, किसी को बहुत ही नीचे गिरा सकती है। आप इस बात से अग्री करते हो या नहीं, करते हो ना। तो इसलिए यहाँ भी वही चीज़ बताई जा रही है हमें। डज नॉट द ओल्ड मैन ग्रीव ओवर ऑल दैट ही हैज़ लॉस्ट। हेयर ही द गेस्ट इज आस्किंग फ्रॉम दैट इलियास। वो बोलते हैं इलियास के बारे में कि उनसे वो पूछते कि क्या इस आदमी को अपने जो चीज़ इसने खो दिया, वॉट एवर ही हैज़ लॉस्ट, क्या उसके बारे में से दुख नहीं है। देन सो द गेस्ट कॉल्ड इलियास एंड हिज वाइफ एंड स्पोक टू देम। और ये सब लोग, जो गेस्ट ने किसे कहा, इलियास और उसकी वाइफ को कहा। देन सी व्हाट इलियास सेड, व्हाट ही रिप्लाइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इलियास सेड, if I were to tell you what is happiness and what is misfortune, you would not believe me. इलियास ने कहा कि अगर मैं आपको बताऊं कि हैप्पीनेस, व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर मी एंड व्हाट इज़ मिसफॉर्चून, देन यू विल नॉट बिलीव मी। मैं अगर आपको बताऊं कि हैप्पीनेस मुझे किस चीज़ में, आपको जो चीज़ मेरी मिसफॉर्चून लग रही है, बट मेरे लिए वही मेरे लिए हैप्पीनेस है। ओके, यू हैड बेटर आस्क माई वाइफ, हिज वाइफ सेड। फिर इलियास सेड दैट ही टोल्ड दैट you can ask from my wife because she will reply you better. Then what his wife said, my old man and I lived for 50 years looking for happiness and not finding it. And that old lady said that कि हमने 50 years अपना टाइम स्पेंड किया एक साथ, बट हमने कभी आज तक हमने खुशी को ढूंढा ही नहीं, हमें हैप्पीनेस मिली ही नहीं है, और हम इसको ढूंढने में ही लगे रह गए ये 50 साल, बट फिर भी हमें नहीं मिला। When we were rich, we had no time to talk to one another. जब हम बहुत पैसे वाले थे, हम रिच थे, then we were not having time to spend with each other. हम जो हस्बैंड वाइफ थे, हमने अब टाइम स्पेंड भी नहीं किया अच्छे से एक दूसरे के साथ। जब हम रिच थे तो तब we spent much time looking after the visitors, getting work done from our laborers and worrying about our cattle. हमने एक दूसरे से ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर दिया, अपने विजिटर्स जो आते थे उनको वेलकम करने में, हमारा जो काम हुआ या नहीं, लेबर्स ने काम किया या नहीं, उसके बारे में जानने में, इसकी देखभाल करने में, और फिर हम अपने कैटल्स के बारे में, अपने कैटल के बारे में टेंशन लेते थे, मतलब सोचने में लगा दिया हमने, सारा टाइम स्पेंड कर दिया कि कैसे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड ऑल दिस। बिसाइड्स माई ओल्ड मैन एंड आई यूज टू डिसअग्री, येल एंड हैव अ रो। फिर भी हम क्या करते थे कि हम आपस में इतना कुछ होने के बाद, हमें पैसे होने के बाद भी हमारे बीच क्या थी, लड़ाइयाँ होती थी, हम एक दूसरे के स्टेटमेंट पर डिसएग्री करते थे, है ना। रो मीन्स फाइट, हमारे बीच फाइट होती थी। फाइट मतलब वो वाली नहीं, फाइट मारा पीटी वाली, इट मीन्स कि स्टेटमेंट वाली फाइट, आर्गूमेंट। ओके, या बच्चे वो मत समझना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Now my husband and I live peacefully with nothing to quarrel about. We have nothing to worry about, but just think how best to serve our master. बस बोलती है वो ओल्ड लेडी कि अब क्या है ना, अब मैं और अब मेरे हस्बैंड को अब कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, अब हमें बस एक दूसरे के साथ हम पीसफुली रहते हैं, अब हमारे पास टाइम है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, है ना। अब हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हमें बस क्या सोचना है, तो हम अपने मास्टर को कैसे उनको सर्व करें, कैसे उनके सारे कामों को टाइम पर करें, बस इसके अलावा कोई भी टेंशन नहीं है हमारे पास, कुछ भी हमें सोचना नहीं पड़ता। We work as much as we can and we get food and clothes. We have fur to wear and fuel to burn when it is cold, and we have all the time to talk and the time to pray. At last we have found happiness. फिर उसने कहा कि अब हमारे पास सब कुछ है, पहनने को कपड़े हैं, जलाने को, ठंड से बचने के लिए हमारे पास फ्यूल है जिससे हम जलाकर अपने ठंड को रोक सके, एंड देन हमारे पास टाइम है एक दूसरे से बात करने की, वी कैन स्पेंड आवर टाइम विद ईच अदर, and then we have the time to pray.
and now we are having the time to pray to God also. Earlier we were not having that time to pray to God. हमारे पास पहले वो टाइम नहीं होता था गॉड को भी, गॉड से प्रे करने के लिए. इतने हम बिजी होते थे जब हम रिच थे तो. बल्कि अब हमारे पास टाइम है. एट लास्ट वी हैव फाउंड हैप्पीनेस. एंड देन दैट ओल्ड लेडी, इट मीन्स इलियास की जो वाइफ है, उसने कहा कि नाउ वी हैव गॉट आवर हैप्पीनेस. अब हमें अपनी हैप्पीनेस मिली है. नाउ वी हैव केम टू नो दैट व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस. अब हमें ये चीज़ मिली, अब हमें हैप्पीनेस मिली, अब हमें समझ आया है किस चीज़ में खुशी है. ऑलराइट, या नाउ एट द लास्ट, in the last paragraph, see, the guests initially laughed but soon realized that what Elias was saying was indeed the truth of life. पहले तो गेस्ट ने थोड़ा हंसा, लेकिन फिर उनको रियलाइज हो, नो दे आर राइट. उनको रियलाइज़ हुआ कि एलियास और जो उसकी वाइफ है ये लोग सही बोल रहे हैं. एंड देन जो भी उन लोगों ने कहा है, जो एलियास और उसकी वाइफ ने कहा, वही सच है. सच, लाइफ की जो ट्रूथ है वही है एंड यही सच है. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस वाज द स्टोरी. I hope you would have understood it very well. Children, this is the first part of the video in which I have explained the story, and the part 2 I will discuss the exercises. All right, जो भी exercises दी गई वो मैं part 2 में करूँगी, explain, discuss करूँगी. Fine. So children, there is a request from you all that subscribe my channel. आप भी करो सब्सक्राइब, और अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे सब्सक्राइब करवाओ ताकि उनको भी हेल्प हो सके. और अगर आप लोग मेरी हेल्प करोगे, मेरे को अगर मोटिवेट करोगे सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरे चैनल को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ना, और फिर मैं और भी आपके लिए वीडियोस बना सकूँगी, आपकी स्टडीज़ और भी इजी हो सकेगी. ऑलराइट, ओके, सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू.